Name of the topic is GDP and welfare. First of all, I want to tell you something about what is GDP. When I talk about the GDP is the value of all final goods and services produced in the domestic territory of the country during a given year. हमारी इकोनॉमी में टोटल कितने का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज बेसिकली कॉल्ड जीडीपी. टू एक्सप्लेन इट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंट्री में बेटा प्रोडक्शन हुआ है 10,000 यूनिट्स का और एक यूनिट का प्राइस अगर 5 रुपीज है, क्या है प्राइस 5 रुपीज है, तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज रुपीज 50,000. दैट इज बेसिकली कॉल्ड जीडीपी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द जीडीपी ऑफ द कंट्री, GDP is the value of all final goods and services produced within the domestic territory of the country during a given year. Now, whenever we have to see the growth of any country, whenever we have to see the welfare of any country, we see it with the help of GDP also, because more the GDP of the country, more will be the standard of living. We assume more will be the education facility. We assume more will be the health facilities, है ना? So GDP indicates the welfare of the economy. But is it a true indicator of welfare or not? That we'll study in this particular topic, GDP and welfare. But to understand GDP and welfare, first we have to understand the difference between the nominal GDP and the real GDP. We have to understand the difference between the nominal GDP and the real GDP. So first I am trying to explain you the difference. Nominal GDP. When I talk about the nominal GDP, when we calculate the GDP of the country at the current year price, whenever we calculate the GDP of the country at the current year price is called nominal GDP, and when we calculate the GDP of the country at the base year price is called the real GDP. Now we have to understand what is the current year price and what is the base year price. Current year price, it means the prices which is going on. The prices which is going on is basically called current price. In the current year, what is the price is basically called the current year price. And from the last years or from the previous year, we take 1 year as the standard year. We take 1 year as the standard year, which is basically termed as the base year. Now, how to select the base year? Base year को हम select कैसे करते हैं? बेटा पिछले सालों में से हम ये देखते हैं कि हमारा जो बेस्ट ईयर है वो कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से अभी इंडियन इकोनॉमी 2011 को इज टेकिंग एज अ बेस ईयर. व्हाई? बिकॉज 2011 एक ऐसा ईयर था जो कि एक स्टैंडर्ड ईयर था. ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम थी, नेचुरल कैलामिटीज बहुत कम थे, है ना. तो हमारा जो अभी तक के पिछले सालों में जो सबसे बेस्ट ईयर होता है ना, वी कैन टेक इट एज अ बेस ईयर. तो 2011 इन द इंडियन इकोनॉमी इज टेकन एज द बेस ईयर. और जरूरी नहीं है, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें जब क्वेश्चन आए तो वो बेस ईयर को चेंज करके हो सकता है 2019 की बात कर रहे हैं करंट ईयर मानकर, और 2018 को दे आर कंसिडरिंग एट द बेस ईयर. But now in general terms, base year should be a standard year and it is taken from the previous years. So when I talk about the nominal GDP, when I calculate the GDP of the country at the base year price, whenever I calculate the GDP of the country at the base year price, मतलब if I multiply the quantity of the current year with the base year price is called the real GDP. And when I multiply the quantity of the current year with the current year price is called the nominal GDP. It means अगर मैं current year price को current year की quantity से multiply करूँगा बेटा, ये nominal GDP कहलाता है. बट जब मैं current year की quantity को base year के price के साथ multiply करता हूँ तो वो real GDP कहलाता है. अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो base year का price है ये previous year का कोई price है ना. एंड ये जो प्रीवियस ईयर का प्राइस है, बेस ईयर प्राइस है, इट रिमेन्स कांस्टेंट. इट रिमेन्स
कांस्टेंट, क्योंकि वो ईयर चला गया है, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो बेस ईयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट बट द करंट ईयर प्राइसेस कॉन्टिन्यूस चेंजेस। कभी प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी प्राइसेस कम हो जाते हैं करंट ईयर में। तो एक पहले फॉर्मूला याद करो, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है PC into QC, that is price of current year into में quantity of current year। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू में क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। अब रियल एंड नॉमिनल में से विच इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, इसको समझाने के लिए आई एम गिविंग यू वन स्मॉल एग्जांपल। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में से क्या बेटर है, ठीक है, इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 2019 में हमारी कंट्री का जो नॉमिनल जीडीपी था वो था 1 लाख, और 2020 में जो हमारी कंट्री का नॉमिनल जीडीपी है दैट इज 1,20,000। नाउ अब अगर हम यहां देखें तो नॉमिनल जीडीपी में चेंज आ रहा है 20,000 का। अगर इसको हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी राइजेस बाय हाउ मच परसेंट, 20% से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, बिकॉज पहले ये 1 लाख था और आज ये 1,20,000 हो गया। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू में 100, तो चेंज इज 20,000, ओरिजिनल इज 1 लाख, इनटू में 100 कर दिया, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज हाउ मच परसेंट, 20%। लेकिन क्या ये एक्चुअल ग्रोथ है कंट्री की, क्या ये रियल ग्रोथ रेट को शो कर रहा है कंट्री की? तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, है ना। मान लो 2019 में हमारा प्रोडक्शन था 10,000 यूनिट्स का, और हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, है ना, और करंट ईयर में 2019 में प्राइस थे कितने, 10। वही अगर हम बात करें तो दैट्स वाई 10,000 इंटू 10 कितना आ गया, 1 लाख आ गया। 2020 में प्रोडक्शन आज भी 10,000 यूनिट्स का हुआ है, बट प्राइसेस कितने हो गए, 12 हो गए 2020 के करंट ईयर प्राइस। तो यह आंसर कितना आया, 1,20,000। तो हमें यहां से एक चीज क्लियर हुई कि नॉमिनल जीडीपी 1 लाख कैसे आया था, 10,000 यूनिट्स इंटू 10 दैट इज द प्राइस, 10,000 units into में 12 which is the new price। so इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, इकोनॉमी में सिर्फ क्या बढ़े हैं बेटा, प्राइस बढ़े हैं। तो हमें यह समझ आया कि नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय प्राइसेस, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू में प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो क्वांटिटी तो आज भी उतनी की उतनी है ना, बट करंट ईयर प्राइस बढ़कर 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। तो दैट्स व्हाई नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय प्राइसेस, नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय प्राइसेस। सो नॉमिनल जीडीपी जो प्राइस से अफेक्ट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। If I talk about the real GDP, I am giving you one example कि रियल टर्म्स में हम ग्रोथ कैसे देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल जीडीपी की बात करें, रियल जीडीपी में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2019 में हमने प्रोडक्शन करा था 10,000 यूनिट्स का, और हम मान लो बेस ईयर लेके चल रहे हैं 2011 को, बेस ईयर हम प्रीवियस ईयर में से कोई ईयर लेते हैं, और बेस ईयर हमने एज्यूम करा का प्राइस एज्यूम करा 5, बेस ईयर में प्राइस कितना था, 5 था। तो रियल जीडीपी हमारा कितना था 2019 में, 50,000 का हमारा रियल जीडीपी था। एंड अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं 2020 में, यहां पे प्रोडक्शन आज भी 10,000 यूनिट्स का हुआ, एंड बेस ईयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और बेस ईयर हम किसको मान रहे हैं, 2011-12 को हम बेस ईयर मान रहे हैं, और बेस ईयर में प्राइस क्या था, 5। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, तो आंसर आज भी कितना आया, 50,000 आया। इट मींस देखा जाए तो रियल टर्म्स में देयर इज नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ थी नहीं, बट नॉमिनल टर्म्स में हमें ग्रोथ कितनी परसेंट शो हो रही थी, 20% की ग्रोथ शो हो रही थी, जबकि एक्चुअल में अगर हम बात करें रियल टर्म्स में ग्रोथ रेट 0% है ना। तो नॉमिनल जीडीपी ड्यू टू अफेक्टेड बाय प्राइसेस, है ना, ड्यू टू अफेक्टेड बाय प्राइसेस व्हिच शोज इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर।
So first you have to understand the formula that is the first difference. First difference, nominal GDP is equal to PC into QC, that is the price of current year into my quantity of the current year. And the real GDP is the price of the base year into my quantity of the current year. Second difference that we have to understand that nominal GDP is affected by prices, can be affected by prices, can be affected by quantity, or may be affected by both. But the real GDP affected only with the help of quantity as the base year price remains constant. Third difference, we can say nominal GDP is inflationary in character because it is affected by the prices also. Inflation means which is affected by the prices means महंगाई. So in nominal GDP is inflationary in nature, whereas the real GDP is not inflationary in nature. And real GDP also, it is a better indicator of welfare because real GDP only changes due to change in output, due to change in the quantity as the base year price remains constant, whereas nominal GDP is not a good indicator of welfare because it might happen that the nominal GDP of the country increases, but it increases only due to change in price. So nominal GDP is not a good indicator of welfare, but the real GDP is a better indicator than the nominal GDP. I hope you understood.